in the case of digital art, now we need to start some extra tools or advanced tool for creating different kind of image editing and image manipulations. Screen visible abhi? Yes, sir, good morning. Yes, sir. 8 floor. Yes, sir. चल रहा है। हाँ बैठ दो उसका कुछ नहीं तो आपने अंदर रखा होगा ना उधर कोई नहीं ओके सो फॉर द अर्पन ओके सो आपको यहाँ पॉइंट्स क्रिएट करना है फेदर में कुछ भी रख सकते हैं और जब आप इसे यूज़ करोगे कलर चेंज कर लो हाइट दिख रहा है Yes, अर्पन sir. इज इट ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो सेम Sir, थिंग when I did it, I mistaken it with doing it later. I used rather later than after selecting. That's why it didn't work for me. okay okay so just do some experiments there is nothing in it in Photoshop you need to just do it some kind of different experiments so you can easily understand that what exactly the tool is doing right then you can reduce Yes, the sir. opacity so you can find out the lighter version of that okay because shadows are a little bit transparent right तो जितना आपको ठीक लगता है उतना आप अरेंज कर सकते हो सिमिलर इस लेयर को हम अगर ऑल्ट जे करते हैं सो अगेन वी हैव एन अनदर ऑप्शन फॉर दैट और इसको हम यहाँ रख सकते हैं और नीचे वाली लेयर की ओपेसिटी को हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं दिख रहा है इज इट ओके Yes, sir. अर्पण so in this way you can create shadow effect right okay Yes, sir. okay great so now we need to understand some advanced tool and we need to create some different design for that in this time we are going to start making photo image editing and we are working with the text tools okay so in our last session we covered short of text tools on typography in a visiting card so I hope you understand about the typing part is it not too much typical just start clicking on the T it creates always a new layer it's just automatically it creates on a new layer so when you start writing or typing text it always create a new layer so you need no need to start working with the new layer okay but when we work without taking different layers so it could be a creating a different or kind of multiple problems in future when we work out on that okay so आपके पास अब Photoshop है okay great okay so for the creating some image editing or some image manipulation we need to understand we need to download a reference image so कोई advertisement अगर मुझे create करना है तो उसके लिए मुझे कोई reference image चाहिए जिसको मैं edit कर सकता हूँ so we have a very important part for that we need to download the reference image so अभी मुझे यहाँ से कोई reference image चाहिए तो मैं क्या डाउनलोड कर सकता हूँ कोई भी एक reference के अगर suppose मैं sports के लिए जाता हूँ okay so we have to go for the sports so in this case we need to download a good quality good resolution image so we go for the tools then creating the size we need only large size images so here we have to find out the different images and the photographs right so suppose the resolution is good so we can create some effect with that okay and we check it with the download so in reference images I just download all the image and then
file, open, and then the source. Is it okay? So we are just download and reference image and just open it inside the Photoshop. So there is the option open. कोई doubt? इतना clear है ना अभी सबको? There is nothing in it. Now we need to open the layer. Is it okay? Then we have to use filter and then using blur. Inside the blur, we have go for the Gaussian blur. And we need to create a Gaussian blur. So just use 8. So the preview you can see in this window. There is a window. You can find out the effect. Then okay. Now we need to save the file. So we go for the save as, save on computer, and inside the computer I want desktop and reference. So in reference I am just saving the file with the name of map, right? Save. Now I am using Control Z. Control Z is for undo. Is it okay? तो एक डिस्प्लेसमेंट फाइल मैंने सेव एज के नाम से अपना डेस्कटॉप पे सेव कर दिया सोर्स फाइल के लिए, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट आई विल शो यू इन द एंड कि फाइनली डिजाइन क्या बनेगा. ओके, सो इन दिस वे इज इट इजी? एनी डाउट? क्लियर है इतना? राइट? Yes, sir. नाउ फॉर द क्रिएटिंग अ टेक्स्ट इफेक्ट वी नीड टू डाउनलोड सम text work. We need to download some text. So exactly what I am going to create, I will show you first which kind of effect I am going to create. So is it visible? Yes. Just a minute. आपने वो MS Team पे नहीं ज्वाइन किया? So this kind of textual work or detail work, we have to work with a part of text. We need some text. Okay, so this kind of effect we are going to create in this file. So we need some text. So about the biography of Dhoni. So it's related with the Dhoni part. So we need to understand about the text. So just go. Inside the all. And we need text. So just type the text, Control C, and open the notepad. So you can edit your text here, just copy and paste, and other. So we need lot of content first. So we need to download. Okay, so now we have lots of content. So now we have to merge all the text. There is no spacing. We need to maintain no space. Okay, then Control A. Again, there is a space.
Then go in the text and create a text box. Just a use of our selection, we can create the text box and then Control V. Is that okay? So we can find out the text. So just Control A, select the black color, and okay. Now we need to secure the space, so reduce spacing. So we just using space reducing. So we need to fill all the paper or designing space with the text. So we can easily create this kind of effect. You can take any kind of text, or you can take a one-liner. You can take your own text, but it should be related with the design. So मैं concept पे काम कर रहा हूँ. आप लोग कोई भी टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट इसी तरीके का. सपोज हम कोई ऐड बना रहे हैं जो कोई किसी ब्रांड के लिए, ठीक है, मैकडी के लिए हम कुछ बना रहे हैं, सो उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ कंपेन हो सकता है किसी चीज का जो हम लिख सकते हैं, पोस्टर बना रहे हैं सोशल कॉज के लिए कोई, तो कुछ भी हो सकता है. सपोज इतना मेरे पास है और मैं इसको उठाता हूँ, Control C करता हूँ और इसको वापस यहाँ से रिपीट कर देता हूँ. सो अभी मेरे पास सफिशिएंट टेक्स्ट और स्पेस है. Control A करता हूँ और यहाँ मेरे पास टेक्स्ट टूल को लेके स्पेस आ जाएगा. सो वी हैव टू क्रिएट द इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, सो थोड़ा सा स्पेस कम करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया. कितना स्पेस रखना है हमें, सो जिसमें हम सही इफेक्ट क्रिएट कर पाए. I think इतना काफ़ी है. Then Control A again, and we want to convert it into a bold text. So take some bold text, so जिसमें इफेक्ट अच्छे से दिखाई दे. Right. More size. Reduce the spacing also. ना दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना. टेक्स्ट को हमने इसमें फिक्स कर दिया अभी, जो डिजाइन मुझे चाहिए था. इसके बाद अगेन वी गो फॉर द फिल्टर. Filter, distort, displace, convert to smart object, right? So we need to select the text layer, make the horizontal scaling and vertical scaling. We can change in it after the final output. And now we need to give the source. So जो हमने source पहले दिया हुआ था, we have to create already. We have to create some reference image and a map with the name of map. So we can give the source, and then we can find out this kind of effect, right? Now we need to put that image on the above. Then we need to create clipping mask. Is it okay? With the help of creating clipping mask, we can find out the background is going to be off. Now we need to create a different image. So different layer, and in a background we can fill it. Now it's already created. Now we can change the displacement. So in a displacement, if you want to reduce the size and horizontal scaling, so I can do it here. Change
map file, so you can find out the changes. Okay, then if you want to do some more changes in a vertical, so just click on the displace and then vertical scaling. Give the source and then okay. So in this way you can manipulate the changes. Anytime you can do the manipulations, and after that if you want to do some color correction or color changes inside it, so where we have done another option for that. The option is for inside the group part, we have an adjustment. So here you can find out the different options. So we go for the brightness and contrast. So it already comes on a different layer. So we need to select the image layer, then we can do changes in it. So if you want to do some dark or lightness, we can create some contrast, so you can edit it, then okay. Any other tools you want to use, curves, levels, exposure, so what the curves is doing the same thing, so you can creating the different effects. You can edit the image or manipulate the image. But when we work with this tool, here in a find out, we create new fill or adjustment layer. So it's work on the layer, right? You can do the same thing from here also. So where's the option? Select image adjustment, and you can find out the same effect here. Brightness, contrast, label, curves. Okay, but what's the difference inside it? When you apply it, so in an adjustment, when you go with the menu image adjustment, so you can doing the adjustment on the image directly, right? And when you apply this effect from this tool, you can doing the impact on the layers. So there's the basic difference. If you're doing the same thing with the image and black and white and brightness and contrast, curves, label. So if you are working with the image, so it directly apply on the image already. And when you work with this tool, so you can doing the changes on the layer. So anytime you can make changes inside it, because it's a different layer. If you want to delete, you can easily delete it. But you apply it on the direct image, so it could not be changed. I will show you. सपोज यहाँ मेरे पास एक डिफरेंट इमेज है और मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ. मेरे पास एक फाइल, सपोज यही फाइल लेते हैं और यहाँ ले देते हैं, ठीक है. डिफरेंट इमेज ओपन किया मैंने, ये एक इमेज थी, ये एक दूसरा इमेज मैंने डाउनलोड किया यहाँ, ठीक है. सो अभी पहले मैंने अप्लाई कहाँ से किया था, यहाँ से किया था ना, ब्राइटनेस कंट्रास्ट. आई अप्लाइड फ्रॉम देयर. ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग ऑल द एडजस्टमेंट फ्रॉम देयर. So we need to you can see we are applying the same thing, brightness and contrast. मैंने ओके कर दिया. अभी ये किस लेयर पे अप्लाई हुआ है, सीधा इमेज के ऊपर अप्लाई हुआ है. समझ आ रहा है? सेम मैं लेवल से अप्लाई करता हूँ या और भी कुछ टूल से अप्लाई करता हूँ. अगर मैं यहाँ कर्व्स मैंने यूज किया था, ये यूज किया था ना कर्व, तो कर्व से भी आप देखो इस पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है. चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. अभी कहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो अभी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ, केवल कंट्रोल Z करके वापस कर सकता हूँ इसको. लेकिन इन द मीन टाइम अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिफरेंट लेयर पे अप्लाई हो, और मैं कभी भी इसको किसी भी टाइम जाकर रिड्यूस कर सकता हूँ, कभी भी हटा सकता हूँ, या इसमें मैनिपुलेट कर सकता हूँ कर्व्स में, लेवल्स में, या ब्राइटनेस कंट्रास्ट में, तो आई हैव टू अप्लाई फ्रॉम दिस टूल. So just go inside it, create brightness contrast. So already you can find out the different layer. It's applying on a different layer. It's a layer adjustment, right? And there is, you can go for the image adjustment. So there is the basic differences inside it. So always try to do some changes if you want to some changes, or you want to edit in future. So go to layer adjustment, and you don't want any changes in future. So just start working. You can do it with the image also. So always there is a 2 or 3 different option for creating a same effect in a Photoshop. Is that okay? कोई डाउट? समझ आ गया इतना? No. So यहाँ से आपको अप्लाई करना है. वापस हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं, और यहाँ से हम इसमें जो हमने चेंजेस किए थे हम उसको चेंजेस करके देख लेते हैं. मुझे ऐसे ही रखना है, then it's okay.
अभी मेरे पास सारी अलग अलग लेयर्स हैं, मैं इसको कभी भी कहीं से भी किसी को भी चेंज कर सकता हूँ, इसके इफेक्ट्स को भी ऑफ कर सकता हूँ। देखो ब्राइटनेस मैंने ऑफ किया, ऐसा दिख रहा है, कर्व्स को मैंने ऑफ किया, इसमें ये चेंजेस हैं, राइट? So in this way you can create this kind of effect. And now if you want to see the changes, you can see there is nothing outline, it's just creating a text effect, and text is creating this effect. Just see, delete, sorry. So see the curves inside the text. So this is the way we can create different effects, and we can create a different advertisement for that. And then I'm just deleting this layer because there's nothing, just opening them. Now I want to create some ad. So if I want to crop this file, so I need to merge all the details. ठीक है, अगर मुझे क्रॉप करना है इसको या सिलेक्ट करना है, so दोनों ऑप्शंस हैं। मैं अगर यहां से जाता हूं और आई वांट टू select only this part, okay, Control C, Control V. White क्यों आया? Reason, white comes white. आपने उतना ऐसा डिलीट कर दिया ना उसके पीछे का। Delete नहीं किया, I just take copy, Control Z again. Reason, ऐसा क्यों हुआ? सर नई लेयर बनाई है इस वजह से। कॉपी करके देखते हैं सर वो काम बताओ। करता है। Reason, what we should do? वो एक ही लेयर पे वर्क कर रहा था सर इमेज के पीछे का बैकग्राउंड तो वाइट ही है ना। First we need to merge all the layers, then we can do the same thing, right? Anytime. अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। So we can start working with the cropping tools also. यहाँ से भी देख लेते हैं। So this is the way you guys has to do some experiments. Is it okay? अभी समझ आ रहा है? क्रॉप हो गया ना? अभी देखो वो क्रॉपिंग सारी इमेज पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, सारी लेयर्स पे अप्लाई होता है, लेकिन सिलेक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है? पर्टिकुलर सेम लेयर के ऊपर जहां हम हमने सिलेक्शन किया हुआ था, और उसके नीचे बहुत सारा कर्व से ब्राइटनेस कंट्रास्ट का एक लेयर है ऑलरेडी, इमेज ऑलरेडी क्लिपिंग मास्क किया हुआ है हमने। वी यूज द मास्किंग टूल, वी यूज क्लिपिंग मास्क फॉर दैट। एंड व्हाट क्लिपिंग मास्क इज डूइंग, तो अभी यहां देख सकते हैं, सपोज ये मेरे पास इधर है, तो हम अभी हटा देते हैं यहां से। Got it? What exactly the use of clipping mask? Same, we work out with the text. इस डिजाइन में हमने क्या अप्लाई किया? क्लिपिंग मास्क अप्लाई किया, लेकिन किसके साथ किया? We experimented with the text, and here we experimented with the clipping mask with the image or shape. So यहाँ क्या है? हमारे पास एक shape है और ये क्या है? Image है। इससे क्या है? We can anywhere we can place this, or any shape we can use it for this.
Suppose we want to fix it in the star, so we need to create a shape of a star, then we can fix it. Is it okay? The use of clipping mask, is it okay? जल्दी clear करो यार, समझ आ रहा है? Yes. How you use with the clipping mask in different designing, you can use it the same thing. Just do clipping mask with any kind of shape or text. Is it okay? Then now we need to create a design, or we need to create kind of quote or kind of design. So we need to create a different design. So there is a separate layers for that. I'm just we can create different effect. Just place with the dark tone, and now we need to give a one liner and any quote for the MS Dhoni or for cricket. So here is some text for, suppose this is the text, we need to fill it, or suppose we have this, just save image. मैं इसको ही लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो इसको भी हटा देता हूँ, फाइल ओपन, और now we need to crop it. So इसको सिलेक्ट किया, जहां से भी मुझे इसको क्रॉप करना है, सिलेक्शन को आप फिक्स कर सकते हो, और मुझे बाकी का जो ब्लैक एरिया था, सपोज कंट्रोल Z, जो बाकी का ब्लैंक स्पेस है बाहर का, इसको डिलीट करना है. सो हाउ कैन वी डू दिस? मेरी बात समझ आ रहा है? जो सिलेक्शन के बाहर का एरिया है, इसको डिलीट करना है, ब्लैक. So clipping mask से नहीं होगा? Why we do it with the clipping mask? कैसे? अगर हम क्रॉपिंग इस पे अप्लाई करते हैं तो सारी लेयर पे अप्लाई होता है. अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, इसीलिए अगर वी डू विद द क्रॉपिंग, सो क्रॉपिंग सारी लेयर्स जो इसके नीचे हैं, बॉटम लेयर्स तक सब पे अप्लाई होता है. मुझे केवल इसको क्रॉप करना है, आउटसाइड एरिया. हाउ कैन वी डू दिस? टेल मी क्विकली. हाउ कैन वी रिमूव द आउटर स्पेस ऑफ ब्लैक? नो नीड फॉर कंट्रोल आई दबा के डिलीट कर सकते हैं. यस, कंट्रोल आई दबा के डिलीट कर सकते हैं सर. कंट्रोल आई जी. एग्जैक्टली, वी कैन डू विद द कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन. सो अगर आप जाते हो सिलेक्ट के अंदर, सो यहाँ ऑप्शन होता है ना, किधर गया, इनवर्स, ये दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? फॉर एनी चेंजेस इन सिलेक्शन, and we want some any kind of changes in inside the selection, so just go in the select part and you can find out the shortcut keys for the inverse selection. Inverse selection, it means वो selection के बाहर के एरिया को कवर करेगा. just check it out. अभी दिख रहा है? we just inverse the selection. now just use the only single button of delete. अभी दिख रहा है आउटर स्पेस डिलीट हो गया ब्लैक का. लेयर देखो कौन सा सिलेक्ट है, फिर से रिमूव करो, कंट्रोल Z. अभी समझ आ रहा है? कंट्रोल D कर रहा हूं. जितना एरिया मुझे इसमें चाहिए, सपोज मुझे स्क्वायर चाहिए, सर्कुलर चाहिए, ओवल शेप में चाहिए, डिटेल को मैंने यहां लिया, इसको ओवल शेप में किया, ठीक है, और इसको मैं स्पेस बार के साथ शिफ्ट कर सकता हूं सेक्शन को. सपोज मुझे ये एरिया चाहिए, अभी मुझे बाकी का स्पेस नहीं चाहिए ब्लैक, सो क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट I फॉर द इनवर्स सिलेक्शन एंड देन use only delete, control D. Is it okay?
मुझे लेकिन जो शेप चाहिए वो यही चाहिए था। सो मैं यहाँ जाता हूँ। बैलेंसिंग देखना बहुत जरूरी है, स्पेसिंग इक्वल है या नहीं, प्रॉपर बैलेंस है या नहीं, उसको आपको जरूर देखना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग, देन कंट्रोल शिफ्ट I for inverse selection, or you can find out the same tool inside selection option. Delete Control D. Is it okay? Now I can place it where we want. Suppose I want to place it here. Now I want to do some changes inside it because ये मेरे background और design के साथ में match करे. So we want to do some changes inside. ঘন্টা তো তাড়াতাড়ি একটা 21 টাকা রিচার্জ করে দাও তো। আধা ঘন্টার ক্লাসে 4.5 कौन है ये? पता नहीं क्या सब्जी खरीद रहा है, क्या कर रहा है। So there is an option for blending options. So here you can check it out, the blending options. It apply on the background layers. बैकग्राउंड लेयर्स के साथ में ये चेंज कर सकता है। सो वी कैन डू सम चेंजेस इनसाइड इट। आपको दिख रहा है ना इम्पैक्ट? दिख रहा है? वी आर वर्किंग विद ओनली ब्लेंडिंग ऑप्शंस। बहुत सारे इफेक्ट और बहुत सारे क्रिएटिव इफेक्ट्स आपको ऑलरेडी इसमें मिल जाएंगे। तो आप ब्लेंडिंग के साथ आप काम कर सकते हो और इसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। सपोज ये इफेक्ट मुझे बहुत बेटर लग रहा है, इट रिप्रेजेंट माय बैकग्राउंड आल्सो, मेरे डिजाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आई कैन फाइंड आउट द टेक्स्ट इनसाइड द क्रिकेट और अदर ऑप्शंस। तो जस्ट चेंज द ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यू कैन फाइंड आउट योर वे व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। सो जस्ट चेक इट आउट। आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ। आप कहीं भी जाके इसको स्टॉप कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एस्थेटिक सेंस कि आपका डिजाइन कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस को अप्लाई करके देख सकते हो। ब्लेंडिंग ऑप्शंस कहाँ होंगे? लेयर्स के साथ। अब आप यहाँ देख सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप उधर फिक्स कर सकते हो। Much readable, less readable, again less readable, flat normal, then we can do some changes, and it's a readable. This one is better. Fine. And that, is it okay? So you can see the changes when I make it zoom in. ये आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है टेक्स्ट के साथ। सो जो बैकग्राउंड का था हिस्सा वो इसमें आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। Now I want to create some shadows inside it. So again there is a different option for creating shadows. One is that we can just do the copy, we can apply for the blur option. एक ऑप्शन है जिससे आप ब्लर ऑप्शन इसको कॉपी करके ब्लर कर सकते हो बैकग्राउंड को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपको लेयर पे डबल क्लिक करना है जिस लेयर पे आप चेंजेस करना चाहते हो। सपोज वी वांट टू डू सम चेंजेस ऑन अ लेयर 2, राइट? सो जस्ट डबल क्लिक ऑन साइड and here is another blending options, then you can find out the drop shadow. So it's already and automatically it creates shadows. Just select it and you can find out the control palette for the shadows, the color, which color shadow you want. So you can find out the shadows color, you can change it anytime. Okay, this one is for opacity of shadow and what exactly it look like, so I will show you. दिख रहा है शैडो आपको? ये जो जा रहा है पीछे ब्लैक एरिया, ये शैडो है। स्प्रेड एंड साइज, सपोज मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, उसके कलर को थोड़ा लाइट रखना चाहता हूं, तो मैं इसको पिक करता हूं और इसको किस एंगल पे रखना चाहता हूं वो मैं फिक्स कर सकता हूं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइटिंग ऑल्सो, कि लाइट जो इमेज सोर्स है वो कहां से आ रहा है? ऊपर की तरफ से लाइट आ रहा है। सो वी कैन फाइंड आउट द लाइट सोर्स ऑन द इमेज फ्रॉम द टॉप। सो वी नीड टू चेंज द शैडोज अकॉर्डिंगली। लाइट सोर्स इस डायरेक्शन से ही आ रहा है। अब यू कैन रिड्यूस द डिस्टेंस, कितना आपको डिस्टेंस रखना है शैडो का,
spread it. And you can use the size also. Anytime you can make control on it. You can changes inside the distance, spread, size. So in this way, you also can create the shadow also. Then okay. Is it okay? So this is Yes. the few updated options. You guys have to do some experiment or R&D on that. So you can find out the best result. Do it in a different images, create your own advertisement, create your own image manipulations and creating different effect. But always take a concept first, always take an idea you when in your mind, then you start working with the design. आपको कुछ ना कुछ design create करना है. Suppose you are working for this kind of image manipulation you want to use, so just create a different kind of poster for social messages. You can create an anti-smoking poster for that. Take some reference image, apply this kind of text effect, anti-tobacco or this kind of campaign you can use for that, and you can create a different design, right? So कोई भी social message के लिए आप एक poster design कर सकते हो. You can design a greeting card, you can design a not visiting card. You can apply it on the magazine cover pages or brochures, or you can apply it on the web ads, right? So you need to create some different effects, but with the logical concept. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बनाया, आपने एक इमेज पे टेक्स्ट अप्लाई करके छोड़ दिया, बस हो गया, समझ में आ गया. You need to create an advertisement. Is it clear? तो फर्स्ट थिंग कि आप क्या बनाओगे इन टूल्स के साथ, क्या आपको अप्लाई करना है, कैसे क्रिएट करना है. देन यू हैव टू क्रिएट अ एडवर्टाइजमेंट. Okay, any product you can take. You can design an advertisement for McDonald's. You can design an advertisement for Burger King. Any brand you can take. But I want some different designs. You need to create a design for the hoarding, for the banner, for the poster, and anything you want to design. But just take any brand. You can take McDonald's, Burger King, and Starbucks, anything. CCD, anything if you want. But your concept should be very clear कि आप क्या बना रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है, पोस्टर है, होर्डिंग है, बैनर है, क्या है एग्जैक्टली वो. So you need to go through with the sizes also. If you are working with the web banner, so you need to understand the size also. What is the size for web banner? So if you are working for the web banner, so your design in pixels, not in inches or centimeters. So you need to create the changes inside here when you create new file. So if you want to work for the web, so just go on the web, then you can find out the sizes. Sizes always be in pixels. Is it okay? So web banner का size क्या होगा, उसका design का format क्या होगा. So ये कुछ templates already दिए हुए. You can check it out the templates also. If you are working for the print ad, so just go inside the print. You can find out the all sizes in inches or centimeter. You can do it, right? If you want to make some design, otherwise और कोई नहीं होगा, print में होगा या web में ही होगा, ठीक है, वीडियो में करना नहीं है. So we can create the changes inside the print or web. आप इसमें से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो. आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी नहीं आएगा, ठीक है. कोई डाउट? क्लियर है? अभी कितने लोगों को याद हो गया ये सारा? मुझे क्लियरली बताओ, अगर समझ में कितना आया, कितना % समझ नहीं आया अभी? सर सब समझ में आ गया सर. एक चीज मिस कर रहा था, जैसे आपने क्रिकेट जो लिखा था स्क्वायर में, इस क्रिकेट के पीछे जो आपने वर्डिंग का ट्रांसपेरेंसी किया है ना, बस इसमें डाउट है इस स्टेप में. और वो बहुत इजी है, उसको आपको बस लेयर को सिलेक्ट करना और यहाँ दिख रहा है ना, ये आपको ये ऊपर ये वाला कॉलम, मेरा कर्सर दिख रहा है, कर्सर ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये आप इधर जाओगे तो यू कैन फाइंड आउट द चेंजेस. जस्ट सिलेक्ट और इसके अंदर आप जाओगे और इसको आप हार्ड लाइट में फिक्स कर दोगे. जैसे ही हार्ड लाइट करोगे ये इम्पैक्ट ऑलरेडी आ जाएगा. इट टेक्स इंप्रेशन फ्रॉम द बैकग्राउंड लेयर्स. क्लियर है? केवल इसको आप चेंज करके देखोगे, डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं इसमें. नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न,
लीनियर बर्न, डार्कर कलर, सो इनमें से जो भी आपको लगता है कि आपके कलर कॉन्सेप्ट और आइडिया से मैच करता हुआ जा रहा है, यू कैन डू इट। मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा था क्योंकि इसमें टेक्स्ट रीडेबल था और क्रिकेट में पीछे का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था टेक्स्ट का, सो इससे वो रिलेट कर रहा था, इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया। इज इट ओके? ओके किसी और को कुछ पूछना है? यस सर। सर जो ये आपने इतना सारा ये लिख रखा है फेस के आगे, हाँ, इसमें जो फेस पर जो वर्ड्स है वो कर्व हो रहे, मतलब कि वो कैसे हुए सर? उसके लिए घूम मैंने रहे। डिस्प्लेसमेंट मैप को यूज किया था। आपको याद होगा कि मैंने पहले फाइल को ब्लर किया था, ब्लर करने के बाद मैंने एक फाइल सेव किया था मैप के नाम से, Yes, sir. और उसके बाद मैंने टेक्स्ट जब लिया तो टेक्स्ट को मैंने एक और फिल्टर दिया था, फिल्टर, और इधर पे मैंने अप्लाई किया था डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस। सो इट डिस्प्लेस विद द ब्लरी मैप। जो ब्लर मैप मैंने इसको आपको एक ये आपसे सोर्स फाइल मांगेगा, इट ऑलवेज डिमांड फॉर द सोर्स फाइल कि किस फाइल के साथ आपको डिस्प्लेस करना है। सो यू नीड टू सेव द फाइल एंड यू जस्ट अप्लाई द सेम इफेक्ट फॉर द टेक्स्ट। सो जैसे ही आप उसको टेक्स्ट के साथ अप्लाई करते हो, वो जाके ऑलरेडी कलर कॉम्बिनेशन और उसके ऑप्शंस के साथ ब्लरी ऑप्शन के साथ मर्ज हो जाता है। सो हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता ये इफेक्ट, अदरवाइज इट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर हम इंडिविजुअली एक एक टेक्स्ट को और कलर के साथ इस तरीके से करने जाएंगे। You can see. Sir, is Just it check it out the possible? text. सर ये पॉसिबल है जो हम फेस को क्या कहते हैं वो कर दे, इस टेक्स्ट से एक्सक्लूड कर दे, इस इफेक्ट से, लाइक फेस को, सर फेस के ऊपर ये इफेक्ट्स क्या कहते हैं वो ना हो, ऐड ना हो, ये पॉसिबल है? हाँ, तो इमेज को यार बहुत इजीली आप इसे क्रॉप कर सकते हो ना, फेस को उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो इस इमेज को। सिलेक्टेड एरिया पे आप काम करोगे तो दो डिफरेंट इमेजेस चाहिए होंगी। फेस की इमेज को हम अलग लेयर पे रखेंगे क्रॉप करके और इस लेयर पे अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ओके सर। सो यू नीड टू यूज योर ओन माइंड कि आप मुझे नया करके क्या दिखाते हो, सारी चीजें मैं और आइडियाज नहीं दूंगा, आपको अपनी तरीके से अपने आइडियाज और इंप्लीमेंट करके देखना है। यू नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स विद द फोटोशॉप। मैं आपको टूल्स बता दिया, मैंने आपको डिजाइन बताया, स्पेशली मैं टूल्स पे बहुत ज्यादा कवर नहीं करता। आई डेंट लाइक कि वो टूल्स तो आप नेट पे भी सीख सकते हो, सारे बहुत चीजों के डिजाइन के लिए ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे। सो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू कैन फाइंड आउट एंड चेक इट आउट। बट द पॉइंट इज दैट व्हाट यू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। सो इफ यू वांट टू क्रिएट सम डिजाइन, दैट्स गुड। अगर आप खाली टूल अप्लाई करना जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू डिजाइन समथिंग, दैट्स द मेन कंसर्न फॉर मी कि आपको मुझे डिजाइन सिखाना है, टूल्स नहीं सिखाना। इज इट ओके? सो मेरा कंसर्न है कि आप जैसे वेब बैनर बना रहे हो, सो यू नीड टू अप्लाई योर डिजाइन ऑन वेब बैनर्स, क्रिएट सम डिफरेंट वेब बैनर्स फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, ओके, एंड डू सम एक्सपेरिमेंट्स विद दिस टूल। जैसे कि अभी जो किसने पूछा था क्वेश्चन के फेस के ऊपर अगर अप्लाई नहीं करना है तो कैसे करना होगा। सो यू नीड टू डू सम विद योर क्रिएटिव माइंड्स कि आपको कैसे इसको आप हटा सकते हो। अगर फेस के ऊपर से इंपैक्ट नहीं चाहिए मुझे, या फेस मुझे यहाँ चाहिए जिसके ऊपर ये टेक्स्ट का इफेक्ट नहीं आया, सो हाउ कैन वी डू दिस? देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर दैट, लेकिन अब आपको वो खुद अप्लाई करना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें तो मैं कवर नहीं कर सकता ना एक क्लास में, तो खुद आपको भी एक्सपेरिमेंट करने। देन यू फील एनी डाउट, देन यू कैन डू इट, यू कैन आस्क मी आफ्टर दैट, ओके। कोई डाउट? So for any doubts, I already uploaded this PPT, okay, in your iCloud, so you can easily download this PPT. In this PPT, I already maintain all the steps, so you can find out the steps here. This one, the first step, take a reference image. Definitely, we want to do some changes on the image, or we want to do some image manipulation or color correction, so we need some reference image. So I just download this image. Pehla, is it okay? Now, my second step, so unlock the layer. First, image layer, we need to unlock it. Then, step 2, apply filter on the image. So filter क्या है? Filter, inside the filter, we find out the blur. Blur में Gaussian blur. Is it okay? Then next step, we need to apply it अकॉर्डिंगली कि मुझे कितना इम्पैक्ट टेक्स्ट का इम्पैक्ट आ रहा है। सो वी नीड टू अप्लाई अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट मार्क किया। यू कैन स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ 5 और 10 और 8। यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग द रेफरेंस। रेफरेंस कितना क्लियर है और कितना छोटा है। जैसे कि ये इमेज का साइज बहुत बड़ा था, इसमें फेस काफी बड़ा दिखाई दे रहा था, और धोनी की जो रेफरेंस इमेज थी उसमें फेस का साइज छोटा था। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट सम साइजेस ऑफ द टेक्स्ट की बड़ा और छोटा कितना रखना है, ठीक है। तो आपको इमेज से जज करना पड़ेगा। You have to do some experiment with that.
Then step 4, we need to create a different file. So we just create a save as, this blurry file, save as, and save as with the any name. You can save as in a design or map, just save. Then copy and paste the text which you want to paste on the layer. So we need to create the different layer. We can paste all the text, right? We need to align the text so we can start working on the first. We need to open and paste the text on the notepad. Then we can align the text and then we can just copy and paste on it on the different layer. Then we can find out the effect like this, and we can change the color. So we have to pick the color black so we can easily displace it. Then again we need to displace the text. So go filter, displace, distort and displace. Is that okay? And we need to give the source. So 10 into 10. We need to give the source. So जहां आपने जो फाइल आपने सेव किया है, सपोज मैंने फाइल डिजाइन के नाम से सेव किया था, so just give the source design, and after that on this layer we need to pick the layer on the top. रेफरेंस इमेज जो हमने लिया था उस लेयर को हम ऊपर रख देंगे. तो यहाँ मैंने वो लेयर में चेंज किया. नाउ कीप इमेज लेयर ऑन द टॉप. जहां इमेज थी उस लेयर को हमने टेक्स्ट लेयर के ऊपर कर दिया. देन वी आफ्टर अप्लाइंग क्लिपिंग मास्क देन गो ऑन द लेयर, राइट क्लिक, और आपको राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क. इमेज पे आपको क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है. अप्लाई क्लिप मास्क ऑन द इमेज लेयर. टेक्स्ट लेयर पे नहीं करना, इमेज लेयर के ऊपर करना है. फाइन. उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर अप्लाइंग क्लिपिंग मास्क टेक न्यू लेयर इन द बॉटम एंड फिल द ब्लैक कलर. इन द बॉटम इट मींस वी नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट लेयर इनसाइड in the bottom, so you can do black color so we can find out the black shades in the background. So this effect finally creates. और ये मैंने कैसे किया है, तो ये मैंने एक रेफरेंस टेक्स्ट निकाला कोड और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया. यहाँ लाके मेरे पास ये स्पेस था और इसको मैंने पेस्ट कर दिया. ये दोनों जो आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आई क्रिएटेड इन द ब्लेंडिंग ऑप्शंस. ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आपको बेवल और एम्बॉस मिलता है. ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, कितने लोगों को समझ आ रहा है कैसे कर सकते हैं? सपोज मैं यहाँ एक स्पॉट क्रिएट करके दिखाता हूं. टेक अ न्यू लेयर ऑन द टॉप एंड ओके, देन पिक द कलर, then fill, Control D. अभी यहाँ आपको इजीली दिखाई देगा. तो मैंने अलग लेयर लिया हुआ है. देन डबल क्लिक एंड देयर इज एन ऑप्शन बेवल एंड एम्बॉस. इज इट ओके? सो व्हेन यू अप्लाई बेवल एंड एम्बॉस यू कैन फाइंड आउट द डार्क एंड लाइट शेड एंड नाउ यू कैन कंट्रोल इट. साइज सॉफ्ट कितना करना है, एज को शार्प एज रखना है. देखो शार्प एज है, सॉफ्ट एज है. सॉफ्ट एज रखना है. साइज कितना रखना है, सो वी कैन डू इट राइट. वी कैन चेंज द एंगल ऑफ द शेडो ऑल्सो. तो वो आपका एक ही होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करोगे. सो यू शुड फोकस ऑन दैट. शेडो एक ही डायरेक्शन में आएगा. यू कैन मेक द चेंजेस इन द शेडोज, और इसमें आप चेंज कर सकते हो आपको किस कलर का चाहिए. बहुत ज्यादा डार्क तो नहीं लग रहा है तो आप इसको लाइट कर सकते हो. थोड़ा पिंकिश करना है, पिंकिश कर सकते हो. देन यू कैन अप्लाई, और यू कैन अप्लाई विद द मल्टी. यू कैन चेंज द कलर बर्न, darker, screen. So screen is okay. You can apply the opacity for the shadow. कितना डार्क और कितना लाइट रखना है शेडो को. This one is the color for shadows, right? Shadow for only this part. Now you want to give a drop shadow or you don't want, so just apply, then okay. Pick the move tool, use Control T, reduce the size, and then anywhere you want to paste, just paste it.
Suppose I can paste it here. क्लियर है? तो बहुत सारे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो. अभी छोटे छोटे इफेक्ट और इम्पैक्ट के साथ में आपको काम करना है. सो दिस पीपीटी इज ऑलरेडी देयर. Okay, here you can find out the step by step how can you create the design, and the concept is that you need to create an advertisement for any brand. सर Yes. सर आपने भी ये सर्किल जो बैनर अभी रेड कलर का बना के दिखाया है इसके ऊपर पॉइंट जैसा, तो उसके लिए एक चीज पूछनी है. तो सर्किल बन गया, अगर इस शेप में हम एक्सट्रैक्शन जाए, जैसे पहले आपका ये लेडी का ये पीपीटी है, इसमें इसका जो एजेस है वो निकले हुए हैं कोई सा और कोई अंदर है, तो उस चीज को हम कैसे क्रिएट करेंगे? ये रैंडमली कोई भी आप पिक कर सकते हो. अगर मैं इसको क्रिएट करने का बताऊं तो आपके पास इसमें भी ऑप्शंस हैं. आप इसको अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि मैंने ये पिक किया, ठीक है. आई कैन अप्लाई इट विद द एड, और सपोज आई वांट टू ऐड इट, सो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ. दिख रहा है? यस यस. एक टूल है ये, एक तरीका हुआ जिससे मैं इस तरीके का इफेक्ट डाल सकता हूँ. अलग लेयर ले लो और इसको मैं फिल कर सकता हूँ. कंट्रोल डी, एक ऑप्शन. क्लियर है? इसके बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ. कोई डाउट? यस 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 क्लियर. ये एक नो तरीका नो है. दूसरा तरीका आपके पास नीचे ऑप्शन है, लेकिन मैं बहुत सारे टूल एक साथ कवर करूंगा तो कंफ्यूजन होगा यार, इसलिए मैं एक साथ कवर नहीं कर रहा था. बता दे रहा हूँ कि इनमें से भी ये सिलेक्शन टूल है. आप इमेज को सिलेक्ट करने के लिए इनको यूज कर सकते हो. सो मैं पॉलीगॉन लैसो ले रहा हूँ और आप इसको सपोज बैक करता हूँ. इससे बेटर है कि मैं इसको लैसो के साथ कर लूँ. सो यू कैन क्रिएट एंड जस्ट सिलेक्ट इट. समझ आ रहा है? रैंडमली आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो इस ड्राइंग की तरह. सो जैसा भी आपको ठीक लगता है उसको वापस हमें उसी जगह सिलेक्ट करके छोड़ देना है. सो अगर मैं रैंडमली इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका फेस को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं. दिख रहा है? यस यस. किसी भी एरियाज को इसको सिलेक्ट कर सकता हूं. मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं इस लेयर पे. कहां गया धोनी की इमेज? इधर से हटा देता हूं. ये इमेज था और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ. सो मैं क्रॉप करना चाहता हूँ सपोज इसका ये वाला एरिया. राइट. सो कंट्रोल सी और देन कंट्रोल वी. अब ये देखो ये एरिया मेरे पास आ गया. So in this way you can do it some changes, you can want to edit it. लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना कि आप कब किस टूल को क्यों यूज कर रहा हो, उसके पीछे क्या रीजन है. यस. तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास. दूसरा ऑप्शन भी है जिसको आप पॉलीगॉनल लैसो के साथ आप बाय क्लिकिंग कर सकते हो. सपोज मैं एक एक एरिया को क्लिक कर सकता हूँ. यू नीड टू क्लिक इट और वी कैन डू द फाइन सिलेक्शन और शार्प लाइन सिलेक्शन. जहां भी शार्प लाइंस हैं वहां हम इस टूल को यूज करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दीज टूल्स आल्सो. सपोज शार्प लाइंस को आप सिलेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हो. सेपरेट सिलेक्शन हमें कहीं करना है, सेपरेट कलर में चेंजेस करना है. सो वी कैन. हो गया. सो कभी भी इसको आप चेंज कर सकते हो. कलर करेक्शन में चेंज करना है उसको यूज कर सकते हो. कंट्रोल से आगे बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा एक साथ कवर करूंगा ना तो फिर कंफ्यूजन होगा, भूल भी जाएंगे. ठीक है. तो अभी आप ये फैक्ट क्लियर करना है आपको. इसको आप काम करोगे इसके साथ, डिजाइन के साथ. कहाँ गया? ये रहा. ठीक है. और आप किसी भी एक ब्रांड का कोई रेफरेंस इमेज लोगे, कोई आइडियाज क्रिएट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद द लेआउट कि आपका डिजाइन क्या होगा, डिजाइन किस तरीके के होंगे. किसी ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो. जैसे मैंने आपको कुछ फूड ब्रांड्स बताए. ठीक है. सो आप कोई भी एक ब्रांड ले लो और उसके लिए आपको डिजाइन क्रिएट करना है. ठीक है. ये इफेक्ट आपको यूज करना है और डिजाइन क्रिएट करना है. कोई वेब हो सकता है, कोई पोस्टर हो सकता है, होर्डिंग हो सकता है, एनीथिंग एल्स.
और असाइनमेंट्स में क्रिएट करूंगा इसके बाद, अभी नहीं कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू एंड एक्सपेरिमेंट इट. जब एक्सपेरिमेंट अच्छा से बन जाए, आपसे ट्राई हो जाए, उसके बाद असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, क्योंकि उस पर एवोल्यूशन होगा, मार्किंग होगी सारी. अब तो चेंजेस करके देख लो, अप्लाई करो और प्रैक्टिस करके मुझे बताना. अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ फिलहाल अभी मैं.